Good morning, everyone. Today we are going to continue our chapter 13, surface area and volume. Yesterday we did the areas. We did how to calculate the area of different 3D shapes which are joined to each other. ठीक है? Nested solids, इसे हम बोलते हैं nested solid, मतलब solid के अंदर solid shape. आपकी किस तरह से छुपी हुई है, उसके ऊपर है, उसके अंदर से निकाली हुई है, ठीक है, उसका आपने कल सरफेस एरिया किया था. एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वॉल्यूम. आपका सेम स्टेप्स पर चलेगा. इसमें आपने अगर किसी ऑब्जेक्ट में से आप एक दूसरे ऑब्जेक्ट को स्कोप आउट कर रहे हो, निकाल रहे हो, ठीक है, तो उसमें से वॉल्यूम माइनस होगी. बट सरफेस एरिया के केस में हम उसे प्लस कर रहे थे, राइट. तो वी आर डूइंग द क्वेश्चन और उसके अकॉर्डिंग फिर देखते हैं क्या क्या होता है. Volume के I hope that you all have learned the formula of volume of all the 3D shapes. So we are starting with the first question. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Hemisphere, इसके ऊपर आपका cone, radius is 1, height of the cone is equal to the radius. ठीक है, और आपकी अगर radius 1 centimeter है, that means this height is also 1 centimeter and you have to find out the volume, total volume. How you will calculate? This is your exercise 13.2. हाँ जी, क्या करेंगे? टोटल वॉल्यूम के लिए क्या प्लस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? Volume of cone plus volume of hemisphere. वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. इसमें हमने कल भी कहा था, पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं, जो कॉमन निकलता है उसे कॉमन निकाल के बाद में कैलकुलेशन करेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 pi r square h. वेरी गुड. 1/3 pi r square h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 pi r क्यूब. ठीक है, कॉमन ले लो. 1/3 pi is common, 22/7. R square is हमें common. क्वेश्चन में गिवन है कि हमें इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर निकालना है. In terms of pi, okay. ठीक है. Find the volume of the solid in terms of pi. So you don't have to put the value of pi. You will write pi as it is. Okay. अंदर आपके पास रह गया h. H is 1. R रह गया. R is 1. But here we have 2 also. ठीक है. तो 2 plus 1 हो गया 3. 1/3 pi. 3 से आपका 3 कैंसिल. आंसर विल बी pi क्या? सेंटीमीटर क्यूब. Because now we have volume, so the answers will be in cubes. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी तरह से. रोशन, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached to its 2 ends by using a thin aluminium sheet. The model is in the shape of a cylinder with 2 cones on its 2 ends. Cone, cylinder, and these are the 2 cones. और आपने वही कल वाली आपको ये शेप बताई थी कि इसके अंदर कितनी एयर ट्रैप होगी, that you have to find out. And you are given the diameter of the model is 3 centimeter. This is 3. And its length is 12 centimeter. Total length आपके पास 12 centimeter है. If each cone has the height 2 centimeter. Total is 12. Each cone is of height 2. ये भी आपका 2 है, ठीक है. And you have to find out the total volume. 2 into volume of cone plus volume of cylinder. 66 centimeter square. Volume of 66 centimeter square Okay. cube आएगा. Twice the volume of cone plus volume of cylinder. 2 into 1/3 pi r square h 1 pi r square h 1 plus pi r square h 2. हाँ जी, ये आपकी हाइट अब अलग अलग है, ठीक है. 2 हाइट यूज हो रही है, हाइट ऑफ कोन एंड हाइट ऑफ सिलेंडर. तो आप इसको h1 ले लो, इसको h2 ले लो, ठीक है. इसको आप यहाँ पे मेंशन भी करेंगे अपने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में. लेट द हाइट ऑफ कोन इज h1 इज इक्वल टू जितनी लिखोगे 2 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ कोन कितनी आ जाएगी? h1 is 2. कितनी हो जाएगी?
8. 8 सेंटीमीटर. 12 माइनस आप 4 कर देंगे, यू विल गेट 8 सेंटीमीटर. टोटल इज 12. उसमें से ये 2 और ये 2 आप माइनस करेंगे, यू विल गेट द एच हाइट ऑफ द सिलेंडर टू बी 8 सेंटीमीटर. वैल्यूज पुट करो, इसमें बाहर निकाल लो पहले. पाई आर स्क्वायर एंड 2/3 h1 प्लस h2. वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लो. h1 आपने कितनी लिखी थी? 2 प्लस h2 was 8. 8. 66 आ जाएगा. 66 सेंटीमीटर क्यूब. टोटल पूरा 66 66 आ रहा है. हाँ. यस मैम. मैम 99 मतलब ब्रैकेट के बाहर 99/14 और फिर ठीक है. अंदर 4 + 24/3 बचेगा. 99/14 और इसको करके कितना है? 4 + 24/3 28/3. 28/3. तो ये आपका इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हुआ एंड द आंसर विल बी 66 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. इसके बाद मैं आ रही हूँ आपके क्वेश्चन नंबर 3 पर. थर्ड क्वेश्चन इज दे आर सेइंग देयर आर गुलाब जामुन एंड गुलाब जामुन के अंदर जितना स्पेस है उसके अंदर शायद 30% शुगर सिरप है. दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट. अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. जितनी उसकी वॉल्यूम है उसका 30% उसमें शुगर सिरप है. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispheres. So we have a cylinder and 2 hemispheres. ये लंबे वाले गुलाब जामुन है and with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. Its total length is 5 centimeter and diameter is 2.8 सेंटीमीटर. ठीक है. तो इसमें आपका टोटल जो गुलाब जामुन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में. ठीक है. और इसमें भी 3 पार्ट्स में अगर डिवाइडेड है, व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट? 5 minus 2.8. That would be 3.8. यस. टोटल में से आपके पास ये डायमीटर, रेडियस 3.8 2.8 आप माइनस करेंगे, यू विल गेट 2.2 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर. वॉल्यूम फिर ऑफ वॉल्यूम ऑफ टोटल गुलाब वॉल्यूम आप जामुन. फाइंड आउट करेंगे 2 times The volume वॉल्यूम of ऑफ. cylindrical pipe. पहले Hemisphere. मैम 1 गुलाब जामुन के निकाल के फिर उसे 45 से हाँ मल्टीप्लाई जी, करते हैं. बिल्कुल. वॉल्यूम ऑफ फिर उसके 30% निकाल सिलेंडर Plus प्लस 2 2 into टाइम्स वॉल्यूम ऑफ प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है. फॉर्मूला अप्लाई कर लो. सिलेंडर का वॉल्यूम पाई स्क्वायर एच प्लस 2 into वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज pi r square. 2/3 पाई आर क्यूब. पाई आर क्यूब. ठीक है. कॉमन आपका हो गया पाई आर स्क्वायर और अंदर आपका रह गया h प्लस 4/3 आर. r. H1 h यहाँ पर तो आपको हाइट सिंगल ही इसी के सिलेंडर की यूज करनी है, तो वही हमने फाइंड आउट की है. कर सकते हैं h1 करनी है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल. कैलकुलेट करके बता दो एक बार कितना आया. मैम कुछ बिल्कुल एंड में जाके आ रहा है 250.506. सिर्फ एक गुलाब जामुन का आप मुझे बता रहे हो? यस मैम. कितना? 250.506. 250? यस मैम. नहीं. ऐसे ही आ रहा है. 250.506 आ रहा है. बाकी कैलकुलेट करें. फिर उसके बाद 45 का आ रहा है 11,272.77. ओके. फिर उसके बाद शुगर सिरप की जब 30% निकाल लो तो वो आता है 3381.831. फिर उसको मतलब टोटल वो करके तो वो 338 वो हो जाएगा अप्रॉक्स. अप्रोक्सीमेट वैल्यू. ओके. चलिए बताइए कितनी वैल्यू निकाली है भाई आप लोगों ने? 1 गुलाब जामुन की कितनी आई है?
45 गुलाब जामुन की निकाली आपने जतिन। चलिए यहाँ पर जो आपके टोटल वॉल्यूम ऑफ वन पीस ऑफ गुलाब जामुन आएगी दैट विल बी 25.03 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक की आपने निकाली है 25.03। इसके अंदर हम फाइंड आउट कर रहे हैं शुगर सिरप। शुगर सिरप इज 30% है टोटल वॉल्यूम का। शुगर सिरप इसके अंदर कितना आ गया, ये आई है वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। शुगर सिरप है 30%, मींस 30/100 ऑफ टोटल वॉल्यूम दैट इज 25.03। और इसका 30% जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। 338 पॉइंट समथिंग, मतलब बेटा 30%, 30%, आई एम आस्किंग 30%। इसका 30% आपके पास आ जाएगा 7.50 सेंटीमीटर। 7.75 7.75 आ रहा है। सेवन 7.75 तो नहीं आ रहा बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करना है आपने 25.03 को। 7.509 हो रहा है। चलिए, एंड वी आर टेकिंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, सो 7.50 मैं यहाँ पर ले रही हूँ। और 7.50 लेने के बाद ये तो आपका है शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन। देन यू हैव टू Into फाइंड आउट 45. शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई इट विद 45। 7.50 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द टोटल शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। और ये आपका वही 338 अप्रोक्सीमेटली 338 आपका आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब। 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेशन। आप ये सारी कैलकुलेशन पहले कर रहे हैं या लास्ट तक सारी कैलकुलेशन जगह के बाद में कर रहे हैं, तो उससे आपका थोड़ा सा डेसिमल प्लेसेस डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, बट अप्रोक्सीमेट आपका 338 आएगा। किसी का थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बट इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल कम आउट टू बी 338। ठीक है, देन कमिंग ऑन द फोर्थ क्वेश्चन, सिर्फ अब मुझे मेथड बताएंगे आप दैट हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। दे आर सेइंग कि एक क्यूबॉइड शेप का आपका वुडन ब्लॉक है। ठीक है, क्यूबॉइड शेप है और इसके अंदर कैविटी है, कोनिकल कैविटी इस तरह से, जिनके अंदर पेन्स आगे से जा सकते हैं। पेन स्टैंड है। ठीक है, इसमें आप पेन रख सकते हैं। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in the shape of a cuboid in which with 4 conical depressions to hold pens। इसके अंदर 4 conical depressions हैं जिनमें आप पेन रख सकते हैं। The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5। 15, 10, 3.5 centimeter, ये तो है cuboid की dimension। The radius of each of the depression is 0.5 and the depth is 1.4। ये जो आपका कोन है, ये कोन, इसकी रेडियस है 0.5 एंड इट्स डेप्थ इज 1.4। ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। मेथड बताओ क्या अप्लाई करोगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 into वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल डिप्रेशन। क्यूबॉइड की वॉल्यूम आप फाइंड आउट करोगे, फॉर्मूला बता दो। L into B into H। L into B into H, इसमें से माइनस करना है आपने 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन। 4 आपने कॉनिकल कैविटीज निकाली है क्योंकि आपने बीच में छेद किया है, निकाल दी है बाहर, सो यू विल सबट्रैक्ट द वॉल्यूम। ठीक है, तो 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन यू विल सबट्रैक्ट फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। डायमेंशंस, वैल्यूज, फार्मूला आप खुद पुट करके इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, मैम जैसे इसका मतलब हमने वो जो क्यूबोडिकल जो बोर्ड था उसमें डिप्रेशन की, तो वो जो उस जैसे कॉनिकल शेप की वुड निकली होगी तो वो बाहर निकल गई, और जितनी जो रिमेनिंग वुड थी वो हमें ऐसे निकाले कि क्यूबॉइड में से कौन 4 हाँ, into कौन माइनस। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे ये भी बता दो कि अगर मुझे इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना हो तो क्या करोगे। प्लस कर देंगे। किसको।
कौन सा एरिया प्लस करेंगे, कौन सा माइनस, जल्दी बताओ। प्लस कर देंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस 4 इंटू सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो पॉलिश करेंगे हम। सरफेस और माइनस एरिया, करेंगे 4 सर्कल्स। यस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, आपने पूरे का टोटल सरफेस एरिया ले लिया क्यूबॉइड का, उसमें से आपने माइनस क्या किया है, ये क्या माइनस किया है, क्या प्लस किया है, प्लस किया है 4 टाइम्स, माइनस 4 सर्कल्स प्लस CSA ऑफ 4 कॉन्स। ठीक है। इसमें से आपने 4 तो सर्कल्स माइनस कर दिए, जो ऊपर वाले होल आपके क्यूबॉइड में हो गए। उसके बाद आपके पास ये जो अंदर वाली सरफेसेस बनी है, इसको भी आपको पॉलिश करना पड़ेगा। सो वी हैव एडेड 4 टाइम्स द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन। ठीक है, अगर आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, your next question is, a vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, ऊपर से open है, means we are talking about the curved surface, अगर surface area की बात आती है तो, and height is 8 centimeter given. Radius of its top, which is open, is 5 centimeter. Radius is 5. It is filled with water up to its brim. ऊपर तक filled है. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. इसके अंदर हमने lead shots डाले जिसकी radius है आपके पास 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, and 1/4 of the water flows out. इसके अंदर जितना भी पानी था उसका 1/4 बाहर आ जाता है पूरी वॉल्यूम का। Find the number of lead shots dropped in the vessel. कितने हमने इसके अंदर lead shots डाले हैं? What you will do? 1/4 पानी बाहर आ गया। That means 1/4 water की जो 1/4 pi r square h। वो लीड शॉट्स के बराबर आएगी। हाँ जी, जितना भी जितना पानी पानी बाहर आपका बाहर गया है वो किसके इक्वल है? वो इन लेड शॉट्स के वॉल्यूम के इक्वल है। सो वी आर अज्यूमिंग दैट टोटल n 1 shot हो जाएगी 4/3 pi r cube। क्योंकि जितने भारी होंगे उतना ज्यादा पानी निकलेगा। तो हम अज्यूम कर रहे हैं n लेड शॉट्स बाय में वॉल्यूम ऑफ 1 lead shot। लेट द मैन स्पीक। दोबारा बोलो। जो नंबर ऑफ lead shot इज इक्वल टू वॉल्यूम एक्सपेल्ड आउट बाय में वॉल्यूम ऑफ 1 lead shot। ठीक है, बिल्कुल हाँ। ठीक है। आपने, अगर मैं n अज्यूम करती हूँ तो टोटल लेड शॉट्स की वॉल्यूम हो गई n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, 1 शॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/4 जो आपकी बाहर आ चुका है पानी, 1/4 द वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, एक बार कर दो ये क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। अभी करना है, पहले किया हुआ नहीं दिखाना, पीछे से देख के नहीं बोलना। सबसे पहले कौन की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है? हाँ जी, करो जल्दी से। आंसर बताना मैम। हाँ, करके, अभी करके। एक सेकंड। 44 100/21। 44 100/21 जो कोन की जो वॉल्यूम आएगी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद इसका 1/4 आएगा, इसका 1/4 वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स आएंगे। बिल्कुल ठीक है। दैट वुड बी 1100/21 हो जाएगा। यहाँ पर हम ना पाई अगर ना भी नहीं भी पुट करोगे ना तो आपका पाई से पाई कैंसिल भी हो सकता है, आप सीधा पाई भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर हमने सीधा रेशियो ही फाइंड आउट करना है ना, तो हम रेशियो के लिए सीधा फॉर्मूला ही लगा लेते हैं, उसके बाद हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसकी कैपिटल R ले लेते हैं, और नीचे हो गया आपका 4/3 पाई r क्यूब। तो पाई से आपका पाई कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आएगा, सॉरी। आगे आंसर कितना आया? 100 लीड शॉट्स गिरेंगे। 100 lead shots. Total 100 lead shots will be there. बाकी सभी भी कर रहे हैं, आर्यन कर रहा है, बाकियों की तो आवाज ही नहीं आ रही। कर दो इरेज।
सिर्फ आपने अपना माइंड लगा के ये देखना है कि फॉर्मूला आपने लगाना कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and of base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder. एक सिलेंडर है और इसके ऊपर आपके पास एक और सिलेंडर है, ठीक है। एंड इसकी सारी मेजरमेंट्स आपको गिवन है। फाइंड द मास ऑफ द पोल, मास फाइंड आउट करना है। गिवन 1 centimeter cube of iron has approximately 8 grams mass. ये क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब जो का भी मतलब वॉल्यूम आएगी उसको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 1 वॉल्यूम अगर 1 है तो उसका मास आपका 8 ग्राम है। यू विल फाइंड आउट द टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम दोनों की वॉल्यूम प्लस करके आएगी। टोटल यू विल वॉल्यूम आ मल्टीप्लाई रही द है वॉल्यूम विद 8। क्या? 1153.28। ओके, सारे पहले कर रखे हैं, उसमें से बताता जाता है पीयूष, तो है ना। चलिए ये क्वेश्चन अब आप कर लेंगे अपने आप। नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है। फिर एकदम से कैसे आंसर बोल देते हो? ये पीछे देखता मैम। पीछे से देखता है? बस- पीछे से नहीं देख रहा होता, वो बीच वाले भी आंसर्स बोल रहा होता है। वॉल्यूम अगर एक की फाइंड आउट करनी है, बाद में 8 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो वो तो पहले वाली वॉल्यूम बोल रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉलिड consisting of a right circular cone of height 120 centimeter of radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder. आपके पास क्या था? एक हेमीस्फीयर और इसके ऊपर एक कोन था। इसको आपने एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया उल्टा करके, ठीक है। इस तरह से आपने इसे अंदर डाल दिया। एंड हम उल्टा डालो सीधा डालो, वॉल्यूम तो उतनी आएगी। वो तो है, वॉल्यूम तो आपकी सेम ही है। सच दैट इट टचेस द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बटे हुए बॉटम। बॉटम के बराबर वॉल्यूम इसके अंदर, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। इसकी भी आपको 60 गिवन थी और इस सिलेंडर की भी आपको 60 गिवन है। इसकी टोटल हाइट है 80, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, और आपके पास जो कोन है उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर, 180 है, सॉरी दिस इज 180, यहाँ से लेकर यहाँ तक 120, तो टोटल हाइट ये 60 120 टोटल 180 और इधर भी 180। दैट मींस ये जो है ये इसके अंदर पूरा का पूरा आ रहा है, ठीक है। आपने फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इनसाइड द सिलेंडर। क्या करोगे? मैम दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच माइनस में 1/3 पाई आर स्क्वायर वो, और H2 होएगा ना मैम। हाइट दूसरी है ना, अलग अलग है दोनों की। हाँ वो तो हम अलग अलग ले लेंगे। दिस इज H1, दिस इज H2, प्लस और 2/3 पाई आर माइनस क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। प्लस या माइनस? मैम Minus. ब्रैकेट में डालो माइनस के बाद। अगर आप इसको ब्रैकेट में करते हैं तो प्लस आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। आर आपकी सबकी सेम ही है, सो यू कैन राइट आर एज आर ओनली, और हाइट अलग अलग है तो वो हमने H1 और H2 ले लिया। सो दिस वे यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। स्फेरिकल ग्लास वेसल has a cylindrical neck. इसके ऊपर एक सिलेंडर है 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter. 8 centimeter and this is 2 centimeter in diameter, ठीक है। and the diameter of spherical part is 8.5 centimeter, 8.5. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. एक बच्चे ने इसकी वॉल्यूम जो है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाली है। यू हैव टू चेक वेदर शी इज करेक्ट और नॉट, टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई एज 3.14। इसमें आपने आपको इन्होंने आंसर भी दे दिया कि ये आंसर निकाला है टोटल वॉल्यूम करके। आपने बताना है कि ये आंसर ठीक है या गलत है।
कैसे निकालोगे वॉल्यूम? दोनों How को will plus you दोनों करेंगे की calculate the वॉल्यूम volume? प्लस कर देंगे। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ sphere. सॉरी स्फीयर। तो इसकी टोटल वॉल्यूम जब आप निकालेंगे वो आपकी इससे अलग आएगी। 346 आएगी। ओके, 346 अगर 346 वॉल्यूम आ रही है कैलकुलेट करके, दैट मींस द चाइल्ड हैज टेकन आउट द रॉन्ग आंसर। Wrong. ठीक है, मैम, तो 40 बोलो 346। 346 आएगी। ओके, 346.51 आ जाएगा और ये वाली आपकी फिर गलत हो जाएगी वॉल्यूम। ठीक है, इसी तरह से बेटा आप नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, राइट? दैट इज उसमें द भी लास्ट वॉल्यूम की बात एक्सरसाइज। करनी है, उसमें भी वॉल्यूम ही चलेगी। हाँ, उसमें भी वॉल्यूम चलेगी। वही कल हमारी बात हुई थी कि उसको करने के लिए आपको दो वॉल्यूम्स को इक्वल करना पड़ेगा। वो आपको देखना पड़ेगा कि किसकी वॉल्यूम किसके